والی کہ میں خدا کے پاس جاؤں، ہیکل میں جاؤں، اور کہتے تھے کہ یہ تو شراب پی کے دیوانی ہو گئی ہے، متوالی ہو گئی ہے، یہ پاگل ہو گئی، یہ کیسے روتی ہے، یہ کیسے دعا مانگتی ہے. لیکن جب خدا نے اس کی دعا کو سنا اور قبول کیا تو اس نے کیا کیا؟ اس بلیسنگ کو لینے سے پہلے ہی اس نے خدا کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ اے میرے خدا، جو بھی اولاد کو مجھے دے گا میں اس تیرے گھر میں تیرے ہیکل میں سے چھوڑ جاؤں گی. کیا کرنا ہے؟ ہم نے پہلے ہی خدا سے شکر گزاری کا وعدہ کر لینا ہے، تب وہ آسمان کے نیچے ہمارے لیے کھول. میں آپ کو بتاتی ہوں، کل کی بات ہے، ہم بڑے چیز سے پریشان تھے. ایک دن کے کلائنٹ کا ویزا پروسیس تھا، لیٹ ہو گیا، اور چونکہ آج لاسٹ ڈے تھا ان کی فیملی کی طرف سے، اور ہم بڑے پریشان تھے کہ خدا نے ایسا کر. کل ہم سارا دن تقریباً دونوں میاں بیوی شام کو ہم بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ ہے صبح کے ٹائم ہم بیٹھے ہوئے کمرے میں اور دعا کر رہی تھی. تو میں نے کہا خداوند مجھے آج ابھی اسی وقت جواب چاہیے. کب چاہیے؟ میں نے نہیں کہا میں تیرے انتظار کروں گی، میں نے کہا آج ابھی اسی وقت مجھے تیرا جواب چاہیے. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں دعا میں ایسے ہاتھ ہے اور ایک کاغذ ہے اور ایک کبوتر آیا، اس نے ایک پرچی اٹھا لی. انہوں نے تھوڑی دیر بعد مجھے کہا کہ لو آ گیا لیٹر. ہیلیلویا، کیسی بڑی بات ہے. یہ اگر آپ نے اپنے اندر رکھ دیا، آپ کے لیے خدا نے بلیسنگ کھول دی ہے اور آپ کی زندگی میں گواہی آ گئی ہے. بلیسنگ آپ نے خود اپنے سے ریسیو کری، کیونکہ جب بھی خدا یسوع مسیح نے جس کو بھی جاتا جاتا شفا دی تو اس نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اور اگر آپ ایمان سے نہیں مانگیں گے تو مانگنا بے فائدہ ہے. لیکن چونکہ خدا نے مجھے یہ بوجھ دیا، اس لیے میں نے اس کام کو کرنا مناسب جانا. آپ میرے ساتھ نکالے نہیمیا نبی کی کتاب، پرانا اہد ناموں میں سے ہے، عزرا کی کتاب کے بعد ہے نہیمیا نبی کی کتاب، اور اس کا 9واں باب ہے. اگر میں کچھ تھوڑا سا کڑوا بول جاؤں تو یہ سمجھنا کہ یہ خدا کی آواز ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ خدا کے وہ لوگ جو بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں نا، وہ آپ کو صرف ریلیکس کھلا رہے ہوتے ہیں. اور ابھی ٹائم وہ نہیں ہے کہ ہم ریلیکس کی گزارتا کریں گے. ٹائم وہ آ چکا ہے کہ پوسٹ گزار لینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی بچہ اگر ملا تو میں اس کو خود چھت پہ چھوڑ. یہاں لکھا ہے کہ خداوند جو ہے وہ نہیمیا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے اقرار کرتا ہے کس کا؟ گناہوں کا. یہاں لکھا ہے پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ توڑ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے، اور اسرائیل کی نسل کے لوگ سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کے خطاؤں کا اقرار کیا. اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے. خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی وسیلہ سے بچوں کو اس بات کا میں چھوٹا سا آپ کو پس منظر بتاتی ہوں. جب خداوند نے موسیٰ کو کہا کہ تو میری قوم کو لے کے نکل ملک مصر کی غلامی میں سے، تو اس نے اس وقت کہا کہ میں کیسے یہ کر سکتا ہوں، یہ تو ایمان میں آتی ہے. اس وقت یسوع نے کہا کہ میں تیرے لیے ایک مددگار دوں گا، اور وہ کون تھا؟ وہ ہارون تھا. ویری گڈ، بائبل اسٹڈی ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے آپ کی روحانی اور جسمانی زندگی کے لیے. خدا نے ہارون اس کے ساتھ کر دیا.
آپ کو پتہ ہے کہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو جب ملک مصر کی غلامی میں سے نکالا تھا، وہ آپ سب جانتے ہیں کیسے کیوں یہ سب ہوا. جب خدا نے ان سب کو وہاں سے نکالا، اب ملک کنعان تک جانے کی باری آ گئی تھی. تو خدا نے یہاں پہ ان کو کہہ دیا کہ اب یہاں پہ ان لوگوں کو ان کی الگ الگ گنتی کر. مثال کے طور پہ اس طرح تھا کہ اگر کوئی جوئش عورت تھی، یعنی اسرائیلی عورت تھی، اور اس نے کسی ہتی مرد سے شادی کر لی تھی، تو خدا نے کہا اس کو الگ کر. اور اگر مرد یہودی تھا اور عورت اموری تھی، تو تب بھی خدا نے کہا اس کو الگ کر. اور اسی طرح خدا نے ایسا ہی کیا، اور وہ دنیا کی پہلی مردم شماری تھی. دنیا کی کیا تھی؟ پہلی مردم شماری وہ تھی. اور جو صرف وہ لوگ اس جگہ تک گئے جو صرف اور صرف یہودی تھے. پھر خدا نے ان کو وہ ملک کنعان دیا، لیکن موسیٰ تب نہ گیا. آگے پھر نیمیا جو ہے، یا اس کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے دور میں بھی جو قوم بنی اسرائیل تھی نا، وہ بڑی لاڈلی قوم، وہ آج بھی لاڈلی ہے. اور انہوں نے جب یہاں تک کہ موسیٰ جب چلا گیا اوپر پہاڑ پہ خدا کے پاس، تو انہوں نے پیچھے سے نیچے بت بنا ڈالا اور اتنا بڑا بچڑا بنا دیا کہ ہم اس کو سجدہ کریں گے. وہ تو آن ہی رہا مجھے یہی اب سے ہمارا خدا ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے. یہاں پہ بھی قوم بنی اسرائیل اپنی جو ہے نا اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کب اور کہاں کیسے گناہ کرتے ہیں. اور اس چیز کو جاننے کے لیے ہمیں خود کو جاننا، ٹٹولنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور روزہ ایک ایسی چیز ہے جو بندھن توڑ دیتا ہے. خالی روزہ اس چیز کا نہیں ہوتا کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، آپ سو جائیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. نہیں. روزے کا مطلب ہے آپ خدا کے حضور خود کو خاکسار کریں. اب خاکسار کا کیا مطلب ہے؟ خاکسار کا کیا مطلب ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. خاکسار جو ہے یہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے، اور خاک کا مطلب ہے مٹی، سار کا مطلب ہوتا ہے چھاننا. جیسے آپ آٹا چھانتے ہیں چھاننے سے، اس کا مطلب ہے کہ چھاننا. یعنی ہم تو خاک سے بنے ہیں، مٹی سے بنے ہیں. سار کا مطلب ہے چھاننا. ہم خود کو چھانیں، ہم خود کو ٹٹولیں کہ ہم ہیں کیا، ہم سے کہاں گناہ ہوا، ہمارے باپ دادا نے کہاں گناہ کیا. دیکھیں یہاں پہ بھی وہ کیا کہتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے روزہ رکھ کر ٹاٹ اوڑھ کر مٹی اپنے سر پر ڈالی، اور پھر وہ کیا کہتا ہے کٹھے ہوئے اسرائیل کی نسل کے سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے. کس سے الگ ہوئے؟ وہ لوگ جو پردیسی ان کے بیچ میں تھے، لیکن یہودی اکٹھے ہو گئے. یہ نہیں کہ انہوں نے بیچ میں آ جا تو بھی آ جا، فلایا تو بھی آ جا تو ساڑھے نال مل کے روزہ رکھ. نو نیور. خدا ہمیں ان باتوں کا حکم نہیں دیتا. اور پھر انہوں نے اپنے کس کا اقرار کیا؟ اپنے باپ دادا. آپ کو پتا ہے ہماری زندگیاں کیوں سروائیو نہیں کرتی؟ ہمارے باپ دادا کے گناہوں کی وجہ سے. کہ کلام کہتا ہے کہ میں جو اگر اچھا ہے تو میں تیری نسل در نسل کو برکت دوں گا، اور اگر اچھا نہیں ہے تو نسل در نسل لعنت ہے. اب ہم نے لعنت لینی ہے یا برکت لینی ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ ویسے دعا میں پرہیزگار نہیں تھے جیسا انہیں ہونا چاہیے تھا. بہت سے ماں باپ ایسے ہیں، بہت سے باپ دادا ایسے ہیں جو تھے، اور آج ان کی اولاد کو دیکھیں کیا سرفرازی ملی ہوئی ہے. آپ قوم بنی اسرائیل کو دیکھ لیں اور پھر اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے. ہمارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بستر ایتھے بیٹھ گئی ہوں. ٹو بی ویری فرینک، شریعت ہمیں یہ چیز نہیں بتاتی، خدا کا کلام ہمیں یہ نہیں بتاتا. میاں بیوی کا بستر کبھی بھی دعا کے لائق نہیں ہوتا. ویری اسٹریٹ فارورڈلی، میاں بیوی کا بستر کبھی دعا کے لائق نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ بیٹھ کے دعا کریں. ہمیشہ آپ خدا
जो हननिया है, सैमुअल है, ये दानियल है, ये सब के सब लोग खुदा की हैकल की तरफ जो है रुख करके दुआ करते थे। आपको पता है हमारी हैकल का रुख कहाँ बनता है? सिर्फ और इनकी मस्जिद का रुख अगर इस तरफ है तो हम अगर ये बनता है तो हम इतना हिस्सा नाप लें तो हमारी हैकल का रुख ये बनता है। और अगर आप जिस दिन ये करना शुरू कर देंगे, आप मेरा ज़ाती तजर्बा है, आपकी ज़िंदगी में जिस्मानी और रूहानी दोनों ही बरकरार रहेंगे। एक दिन आपको पता है मैं क्या आस्था के भी रोजा रखा था और कितनी बड़ी कौम को एक अकेली ने बचाया जा रहा, ऐसा ही था। और उसने अपने जो है रिश्तेदारों को बचाया, उसने सबको बचाया। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर एक भी घराना में रास्तबाज इंसान होगा तो मैं उसके पूरे घराने को क्या करूँगा? बचाऊंगा। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के कि जिस दिन से मैं आपके घर से होके गई हूँ, आप सुबह सुबह उठ के दुआ करती हैं, दैट्स वेरी गुड। और यही आपकी ब्लेसिंग लेने का टाइम है। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद ने आपको ब्लेसिंग दे दी है, ये नहीं कह सकते आपकी देनी है। अगर हम ये कहेंगे कि देनी है तो फिर दैट्स मीन हम शक करते हैं, और हमें शक करके तुम्हारे रसूल ने भी शक किया था ना, पता है ना आप लोगों को, तुम्हारे रसूल ने शक किया था यीशु मसीह पे कि क्या तुम वही है? उसने कहा मेरी पसली जहाँ पे नेजा लगा था मेरा हाथ डाल के देख ले, और उसने ऐसा ही किया था। ये ईमान अगर हो तो बरकत नहीं आती। हाँ, अगर आपका ईमान ये है जैसे यहाँ कौम बनी इसराइल ने, और फिर कहता है एक पहर से, यानी एक पहर से वो आपको पता है शुरू होते हैं और वो शुरू ही रहते हैं। और वो कैसे दुआ करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये किताब वो उठाते हैं और एक पहर वो शुरू होते हैं और वो ऐसे अपना मुंह जो है खुदा की हैकल की तरफ रुख कर देते हैं और वो कॉन्टिन्यूसली इसको पढ़ते हैं, यानी कि पैदाइश से लेके मलाकी तक उन्होंने पढ़ जाना है। आप लोगों में से बाइबल स्टडी कौन कौन करता है? कितनी करती हैं आप डेली की? एक वर्ष, 2 वर्ष, एक चैप्टर भी नहीं आप लोग पढ़ते होंगे। आप पढ़ती हैं एक चैप्टर में कम से कम आप लोग 5 से 10 चैप्टर डेली के रखें। फिर आप देखें कि आपकी जिंदगी में क्या बहाली आएगी। वो सुस्त कवारियां, आज मैंने बच्चों से भी थोड़ी सी उनकी काउंसलिंग की, तो सुस्त कवारियों वाला सीन ना करें अपने साथ। खुदा कहता है कि ना तो मुझे ठंडा पसंद है, ना मुझे नींद गरम पसंद है, उससे सर गरम पसंद है। ठंडा हो तो नींद गरम हो तो मुझसे निकाल के। जब ये सोचें कि खुदावंद यीशु मसीह की अगर अदालत लग जाए, आज ही रात को आ जाए, तो आप तैयार हैं? मैं जब 9th क्लास की स्टूडेंट थी तो हमारी सिस्टर विल्सन हमारा एक पीरियड लेने आई थी, हमारी टीचर नहीं आई थी, तो सिस्टर विल्सन से हम बातें करके वो आयरलैंड की थी। तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू बिकम डाई, मैं मर जाना चाहती हूँ। तो हमने कहा सिस्टर जी व्हाई? तो कहने लगी आई वांट टू बिकॉज आई वांट टू सी माय जीसस, मैं अपने यीशु को देखना चाहती हूँ। और वो उस वक्त की वो बात मेरे यहाँ बैठी तो यहाँ बैठी, और मैंने वो दिन है और ये दिन है, मैंने जिंदा कलाम को नहीं छोड़ा, खुदा के खादमों की इज्जत करना नहीं छोड़ा। मैं खुद एक खुदा की खादमा हूँ, लेकिन अपने से सीनियर पास्टर्स मेरे घर आ जाए तो मुझे, मेरी बेटी भी से वही सब कुछ करती है क्योंकि उसने मुझे ये सब करता देखा है। मेरे हस्बैंड है वो भी पास्टर्स में ही उठते बैठते, मैं खुद पास्टरों की जूतियाँ साफ, चप्पल उनके आगे, कपड़े वो अगर हमारे घर में रहे हैं तो कपड़े धो के इस्त्री करके हैंगर में है, पास्टर साहब ये है आपकी सुबह का कपड़ा तैयार है। और अगर बुआ जी उनके साथ आई हैं तो बुआ जी के भी कपड़े धो ताकि ए बुआ जी तुसी रख लो ना जे तुसा वापस जाना। ये है बरकत लेने का तरीका कि खुदा के खादमों के साथ आप जुड़ जाएं, इस कलाम के साथ आप जुड़ जाएं। अगर आप अपनी बरकतों को लेना चाहते हैं, एक बरकत तो नहीं है, बहुत सी बरकत है,
बहुत सी बरकतें हैं। खुदा ने कहा कि बाप दादा के गुनाहों का यहाँ के इकरार उन्होंने किया कि खुदावन अगर हम यहाँ गलत है तो तुम हमें बात हमें क्या है। और आगे लिखा है कि खुदावन की शरीयत की किताब पढ़ी, क्या मैंने अभी आपको बताया, यही बताया। और दूसरे पैर में इकरार करके खुदावन अपने खुदा को सिजदा करते रहे। आप 1 घंटा में कहूँ ना 1 घंटा खड़े होकर बाइबल पढ़ेंगे, नेवर। साढ़े तो गोडे बड़े दुखते हैं, पिंडियां भी दर्द होती हैं, सानू शुगर भी होते, सानू पिलाना भी। लोग ऐसा कहते हैं। मेरी जिंदगी में मैंने एक औरत को देखा है, वो इस दरवाजे जितना उनका कहते हैं, मेरे शोहर के दोस्त है, उसकी माँ है, वो बेवा हो गई जवानी में, बेवा हो गई जवानी में, यंगेस्ट, बिल्कुल यंगेस्ट। उसके भाइयों ने कह दिया साढ़े वन ना देखी, कहती मेरे शोहर का जनाजा पड़ा था, मेरे कान में मेरे भाई ने आके कहा साढ़े वन ना देखी। तो कहती है मेरा कच्चा घर था, एक कमरा था, कच्ची मेरी सारी जगह थी, लोगों के घरों में काम किया, दवा रोजा नहीं छोड़ा, दुआ और रोजा नहीं छोड़ा। अनपढ़ औरत है मगर 3 टाइम बाइबल को पता क्या करती है, एक एक सफा खोलती है और ऐसे करती है, एक एक सफा खोलती है और ऐसे ऐसे करती है 3 टाइम। और आप जाकर उसका घर देखें तो आप कहेंगे मर्द क्या ऐसा घर बनाएंगे जो इस औरत ने घर बनाने वाला है। कलाम में लिखा है अगर यहोवा ही तेरा घर ना बनाए तो मेहनत करने वाले की मेहनत क्या है, अबस है। तो यहाँ हमारा काम है कि जब हम रोजा रखें, हम दुआ में ठहरे। खाली दुआ में ठहरने का मतलब है आप झुक जाए, अपने दिल को खोल दें उसके। इंसान के आगे क्या रोना, इंसान के आगे रोने से कोई इंसान पता क्या कहेगा। शेक्सपियर की कहावत है कि whenever you sad no one sad with you but whenever you laugh everyone laughs with you। यानी कि जब आप हंसते हैं हर कोई आपके साथ हंसेगा, पर जब आप उदास होते हैं तो आपके साथ उदास होने वाला कोई नहीं होता। और वही खुदा की जात है जो आपके साथ साथ रहती है। उसने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। कैसा खूबसूरत पद है। मैं जब भी ये बात करती हूँ मेरे पूरे जीवन में एक अजीब सी लहर, एक अजीब सा करंट जो होता है कि वाकई ये सच है। अभी आप लोगों के घर आने से पहले एक बच्चा आया, वो बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, और शायद मैं लेट ही इसीलिए हुई उस बच्चे के लिए, वहाँ पर मैं लेट हो गई और मैंने उसके सर पे हाथ रखा ही है। अभी तो खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिखाना शुरू कर दिया और खुदा ने मुझे अपना ये निशान भी बख्श दिया कि मेरे इधर इतना बड़ा रेड निशान बन गया। अभी देखें कुछ नहीं है, मैं कह रही हूँ ये किस चीज़ का निशान है। तो खुदा ने कहा ये वो निशान है, मैंने मुझे साइन दिया कि इस बच्चे के लिए दुआ कर। अभी उसका बाप लेके आ रहा है और मैंने उससे कहा है तेरा बेटा सुनेगा भी, तेरा बेटा बोलेगा भी। वो मैं थोड़ी करूँगी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान कुछ नहीं है। अगर पाक रूह उसके अंदर है तो बहुत कुछ है, पाक रूह नहीं है तो करंथियों 13 बाप में लिखा है मोहब्बत भी नहीं है और ठनठनाता पीतल तो झंझनाती झांझ है। अगर तुममें मोहब्बत नहीं है, और मोहब्बत आती कहाँ से है, तो मुझे बताएगा मोहब्बत, ये मोहब्बत कहाँ से आती है, कहाँ से आती है? अब आपको मैं ये बताती हूँ कि जो शरीयत की किताब है वो आपको क्या कहती है, खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि हमने खाली रोजा रखना नहीं, मुंह से अपना लेट लेना। यीशु मसीह को भी इब्लीस ने रोजे में आजमाया था, उसने कहा कि इन पत्थरों को कह तो तेरे लिए रोटी बन जाएंगी। उसने कहा कलाम में ये भी लिखा है कि इंसान फक्त रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि खुदावंद अपने खुदा के जिंदा कलाम से जीता रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है, आप मेरे साथ निकाले यिर्मयाह की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी हम 16वीं आयत से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है खुदावंद यूं फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो। फिर क्या कहता है? खड़े हो, देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राहें कहाँ हैं, उसी पर चलो तुम्हारी जान राहत पाएगी।
पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। खुदा क्या कहता है यहाँ यिर्मयाह से खुदा ये कहता है कौम बनी इसराइल को, यहाँ पे भी खुदा रात दिखाता है कि रास्तों पर खुदावंद फरमाता है रास्तों पर खड़े हो देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राहें कहाँ हैं, उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। यानी कि यहाँ पर भी ये इसलिए कहा गया है कौम बनी इसराइल को कि अपने मुंह से ना ये शरीयत की किताब को ना हटने दो। अगर ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे तो क्या होता है? फिर अगर आप रोजा रखते हैं ना, रोजा रख के आप खड़े हो जाएं, आप घुटनों के बल हो जाएं। आपको पता है जब मूसा ने और खुदा के हुजूर दुआ की तो ऐसे ही की, और दाऊद ने जब गुनाह किया तो उसने भी ऐसे किया, रोजा रखा और अपने सर पर खाक डाली, टाट ओढ़ लिया और मुंह के बल ऊंधा होके उसने क्या किया? दुआ की। दुआ तो सुन ली खुदा ने, पर उसका गुनाह खत्म किया खुदा। गुनाह वो बेटा जो पैदा हुआ वो गुनाह की बाबत पैदा हुआ, इसलिए खुदा ने वो जड़ ही खत्म कर डाली। इसलिए खुदा के हुजूर अगर जब भी कभी आप खुद को खाकसार बनाए, खाकसार का मतलब मैंने अभी बताया कि खुद को जाने, खुद को छाने टटोले कि खुदावन हम क्या हैं। जहाँ जहाँ हमें कमी है ना, खुदावन को आज और अभी इसी वक्त इस कमी को अपने यीशु नाम की खातिर अपने पाक लहू से वो कमी को पूरा कर दे, और खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। मैं चाहूंगी कि आप सब भी आज अपने घुटनों के बल होकर खुदा से दुआ मांगे, और अगर किसी का दिल करता है कि खुदा के हुजूर रोए, वो रोए। खुदा चूंकि सुनता और जवाब देता है। जिस किसी को खुदा का रूप बढ़ता है, जैसे भी दिल करता है वो दुआ करना शुरू, और उसने कहा है कि अपना मुंह खूब खोल तो मैं तेरा क्या कर दूंगा? भर दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपको भर दे, पाक रूह से भर दे, अपनी हुजूरी और मामूली से भर दे, तो फिर अपने मुंह को खोले। यहाँ और समझे कोई नहीं है, यीशु के अलावा, उसके पाक रूह के अलावा यहाँ कोई बंदा ना बंदे की जात है। अपने मुंह को खूब खोले। हालेलुया। राजा महाराज हमारे खोल है खुदावन, ये तुझसे मांगे, ये तेरे नाम को है खुदावन हमें, शुक्र खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरे नाम को बड़ी है। नहीं है खुदावन, लेकिन तूने हमें जवाब दिया है खुदावन।
महिमा से तेरी तू इस जगह को है, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ यस प्रभु, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मीना आप अपने घोड़ों पर खड़ी हो और सच्ची खुदा के हुजूर दुआ करना। ओ जिंदा खुदा, यीशु नाम सब नामों से, यीशु नाम सब नामों से, यीशु नाम सब नामों से, यीशु की कुदरत का खुदा। तमाम बंद दरवाजे, तमाम बंधन खुल जाए, तमाम मुसीबत खुल जाए, मुकम्मल काम करने से रखाई अबर को चाहते हैं, मेरे फजल में चाहते हैं आप अपने आसमान बड़े के बाद लोगों को बेटी यहाँ दुआ करें, सब बेटियों को शुक्र से काम करें, जिंदगी को नामसा करते हैं, जिस चीज को हाथ करें वो अपनी खिदमत के लिए बेटी को कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना सिखा, अच्छी राह पर चलना सिखा, जिंदगी की राह से निकला दे। इसका जितना मनसूबा वो फिलहाल जमायत में बैठे एक एक बच्चे के खिलाफ, बड़े बुजुर्ग के खिलाफ, तो इस नाम से आज बेटा एक एक बच्चा बेटा बेटा सब खुदा निजात को बेटी स्वामी के लिए खुदा दुआ करते हैं स्पेशल कि खुदावन उसके जीवन साथी के लिए कि खुदावन उसे अपने कलाम की रोशनी अता फरमा खुदावन, ताकि खुदा इब्लीस का जोर उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जाता रहे। ओ खुदावन बेटी स्वामी खुदावन अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी में खुदा खुशहाल जिंदगी गुजार सके। आज शाम तेरी बेटी को तेरी सलीब के नीचे ले जाते हैं। ओ खुदावन तेरा मसला चाहते हैं इसकी जिंदगी, ओ तेरा पाक उसकी जिंदगी में काम करेगा। मेहरबान और जिंदा पाक खुदा, मैं तेरी बेटी, मैं तेरी खादमा जिसको तूने चुना है खुदावन, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तुमने मुझे नहीं मैंने तुम्हें चुना है, और ये सच है कि तूने मुझे चुना है। और एक खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ अपने चुने जाने के लिए खुदावन, और जो बरकत तूने मुझे दे रखी है खुदावन, मैं उन बरकतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, और इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन के जो एक खुदावन तूने मुझ में कुव्वत बख्शी है खुदावन, उसको तू एक खुदावन दूसरों तक ट्रांसफर करता है। तूने मेरे बोझ को जाना, तूने मुझे देखा, तूने मुझे बुरे से उठा के मजबूत चट्टान पर खड़ा किया। हम इस लायक ना थे खुदावन, लेकिन खुदावन तूने पेश बहा कीमती देके हर चीज की बना हमारे दामन पार कर दिया, आज कोई कीमत नहीं है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, और इस घराने के लिए मैं खुदावन तेरे से बरकत चाहती हूँ। मैं स्पेशली खुदावन जी इस घर का सरबराह के लिए आज अभी इसी वक्त दुआ करती हूँ, क्योंकि अंकल को खुदावन जी जो भी दर्द है, जो बुखार दर्द है,
अभी इसी वक्त तेरे लिए सारी दर्द सारी तकलीफें ये सुना घर से दफा हो जाए और प्लीज जिस्म को भी हमेशा के लिए बीमारी का बिस्तर हटे और तंदुरुस्ती का बिस्तर हमारे घर में मिले। सब के अज़ाब सारी बीमारी तेरे इनकी आई साइट के लिए स्पेशली आज इसी वक्त तेरा हाथ बढ़ जाए तेरी आंखों का सारा इन्फेक्शन तेरे नाम से हमेशा के लिए जाता रहे। अभी इसी वक्त आंखों को मुकम्मल रोशनी अता फरमा और एक तमन्ना बरकत दे और आई साइट सारी तेरे ये सुनाम से दोनों आई साइड तू है खुदावंद जी अपने बाबू की कुदरत से खुदा शिफा कुछ भी नहीं तेरे आगे। इसी तरह खुदावंद जी मैं मीना को और उसके हस्बैंड को तेरे पाक हाथों में देती हूँ। ये मेरा ईमान है खुदावंद तेरे पाक लहू से धुल जाता है। आए खुदावंद उनकी जिंदगी में जो तूने खुदावंद जी खुशखबरी ठहरा दी इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और एक खुदावंद मैं दुआ करती हूँ बेटी की जिंदगी में काम कर खुदा जितने भी इब्लीसी बंधन है खुदावंद तूने आज तोड़े और मैं शुक्रगुजारी तोड़ दिए मैं सवाल शुक्रगुजारी करती इनकी बेटियों के लिए तुझसे बरकत पर बरकत चाहती हूँ खुदावंद जी बेटों को इनके शोहरों के साथ होए खुदावंद बेटियों को इनके शोहरों को अकल और दनाई दे सोनिया का हस्बैंड जब के नशे की लत में तू बड़े बड़े लोगों को सीधा करना जानता है खुदावंद तुमने जब तू बनता सीधा करता है सीधे रास्ते पे ले आओ कोई उसको टेढ़ा नहीं करता गलत से छुड़ाओ अब आसमान अपनी जिंदगी बख्श खुदावंद देता है कलाम की तैयार कोई से बांध नहीं सकता और जब तू आसमान पर बांध देता और है उसके हाथों को खुदावंद दुआ के लिए इस्तेमाल करना सिखा एक खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ ये बच्चों के लिए खुदावंद बड़ी इसके इनकी प्रेजेंस तेरी में तेरी प्रेजेंस इन खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं एक खुदावंद जिस तरह की बेटी बेशक फौजिया के लिए इसका कुछ करने में कादिर है एक खुदावंद मैं नहीं जानती है खुदावंद तू ज्यादा बेहतर इनकी बेटियों के बारे में जानता है खुदावंद इनकी बेटियों को बरकत पर बरकत दे खुदावंद रहम कर तरस करना है खुदावंद तू ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है खुदा अब से हमेशा तक है खुदावंद इनकी बेटी मारिया पे अपना हाथ बढ़ाए रखना है खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी है खुदावंद ऐ खुदावंद मैं दुआ करती हूँ तो उसको बेटे जैसी भी बरकत देना है उसको बरकत देना है खुदावंद बेटे जैसी बरकत देना है जैसे तूने इब्राहिम को एक खुदावंद जी और सारा को तूने बरकत दी ऐसे ही है खुदावंद जी इनको भी बरकत है खुदावंद उनके नामों के मतलब इतने खूबसूरत है खुदावंद वो ही है खुदावंद जी इनको उनकी जिंदगी में यही बरकत है रहम करता तरस करना है खुदावंद ये जहाँ जहाँ जाए खुदावंद तेरे नाम की गवाही ये जहाँ जहाँ जाए खुदावंद तेरे इंजील की फैलाते ऐ खुदावंद जो तू ऐ खुदावंद जब तू खुदावंद हीना को कलाम इनकी जिंदगी में खुदावंद जड़ अपना जो भी खुदावंद उसको ला दे वो उसको तेरे नाम से बख्शिश कर दे मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस बात के लिए कि तूने उसके लिए ये काम ठहरा दिया इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने उसके दिल को छू लिया शुक्र करती हूँ हम इस लायक नहीं है खुदा लेकिन है खुदावंद तूने अपनी पेश बहा कीमती जान देकर हमें बचाया और छुड़ाया तूने कहा लाजर तू कब्र से बाहर आ तो वो कब्र से बाहर आ गया और एक खुदावंद दानियल को शेरों की खाल में डाला गया लेकिन खुदावंद दानियल को शेरों ने भी खुदावंद जिंदा कर दिया एक खुदावंद हम तू वो खुदा है जिसके हम परस्तार हैं हमें वही परस्तारी वही वफादारी वही ताबेदारी बख्श दे खुदावंद है खुदावंद अब से हमेशा तक है खुदावंद जी इस पुराने में अपनी बरकतों को बहुत ज्यादा कसरत से खुदावंद कुछ भी कर भेज दे तो मौजूद गुजारी हो हालेलुया हालेलुया मैं ये सब कुछ मांगती बड़े ही ईमान से यहोशुआ अल-मसीहा के नाम से जिसने हमें सिखाया हमारे बाप जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे हमें माफ हमें आज़माइश में क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा के लिए है आमीन खुदावंद यीशु मसीह का फजल आपसे हमेशा तक आपके साथ बना रहे आमीन खुदावंद आपको बहुत